नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा में सीपीआईएम नेता जितेंद्र दास की पत्नी कल्पना दास की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। कल्पना का शव उनके घर पर खून से लथपथ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगरतला के वृद्धिनगर में गुरुवार को सीपीआईएम नेता जितेंद्र दास की पत्नी कल्पना दास का शव उनके घर पर मिलने से सनसनी फैल गई। कल्पना की बेरहमी से हत्या की गई है। कल्पना के शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान हैं। वहीं शव के पास से एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल्पना और हत्यारे के बीच हाथापाई भी हुई होगी। कल्पना की हत्या क्यों हुई, इसके कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर विभाग के आईजी अनुराग ध्यानकर ने आश्वासन दिया है कि हत्यारा जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। वहीं फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। मामले की जांच जारी है। রুমে যে অ্যাক্সেস আছে এটা কন্ট্রোল ছিল, ভিতরে কই কিন্তু আমরা যখন সকালবেলা আসলাম অনেকগুলো এরকম আমাদের চিত্র ধরা আছে, ক্যামেরা বন্দি আছে। নো প্রবলেম, উই উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন। আর যে বডি আছে এখানে যে ইনজুরি আছে এটা তো ক্লিয়ার আছে, কোনো এটাতে হবে না। আগে আমার আসার আগে কিছু ডিস্টার্ব হয়েছে, যেহেতু সবাই সবসময় হয়, এটা তো এখন কোনো জায়গায় কই হয় তো বেশি সবাই ওখানে ঢুকে যায়। সেই ক্ষেত্রে কি মনে হয় প্রকৃত আসামিকে ধরা যাবে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। सर हमने तो कोटा स्पॉट को 3 टाइम। अरुणाचल प्रदेश से अफस्पा हटाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने अफस्पा के विरोध में रैली निकाली, तो वहीं ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने भी राज्य से अफस्पा को हटाने की मांग करते हुए रैली का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी पार्टियों से लेकर स्टूडेंट यूनियन तक ने अफस्पा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। एक तरफ पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने अफस्पा के विरोध में ईटानगर के आईजी पार्क, टेनिस कोर्ट से लेकर राजभवन तक विरोध रैली निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने भी अफस्पा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आकाशदीप से राजभवन तक रैली निकाली। पीपीए और आपसू दोनों की ही तरफ से राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें राज्य से अफस्पा को हटाने की मांग की गई है। पीपीए के चेयरमैन कामेन रिंगू ने कहा कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है और अफस्पा जैसे कठोर कानून की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कामेन रिंगू ने कहा कि अफस्पा के लागू होने से राज्य की जनता में भय का माहौल है। ऐसे में ये जरूरी है कि अफस्पा को हटाकर प्रदेश के लोगों को भय मुक्त किया जाए। I, on behalf of the People's Party of Arunachal, taking this protest rallies against the imposition of Armed Force Special Power Act, which has been imposed months back. So it is a very, very unfortunate. We have learned the brunt of this ASPA, which is happening neighboring state of northeastern region. At least 8,134 civilian has been killed with this related to the imposition of ASPA in the neighboring state of Manipur and Nagaland. So this is unfortunate in Arunachal Pradesh. No doubt there are hired crime syndicate activities somewhere in the eastern of Arunachal, but we don't have that recognized crime syndicate or outlawed people here. Therefore, the government, Arunachal government, they must take careful and resist this, blanket imposition of the army, and this will not be, problem for the state government, but the general armed people, innocent people will be suffered because of this unruly activity of the Indian Army. So we believe this government, Arunachal government, led by Sri Nabam Tuki, should very carefully resist this particular imposition of the central law and army law. There is no hearing, there is no FIR, court has nothing to say. As a result, will be crushed. Therefore, People's Party is now started moving towards the people
to resist it. No, this is a black. This is very much draconian law, and this is the license which is being given by the government of India to the paramilitary force of India to kill the innocent people of the northeastern state. This is alienated act. त्रिपुरा में असम राइफल्स वाले बयान से घिरे मुख्यमंत्री मणिक सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि सीएम बिना शर्त असम राइफल्स फोर्स से माफी मांगे। मांग पूरी ना होने पर कांग्रेस ने सीपीआईएम के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार के असम राइफल्स वाले बयान के बाद विपक्ष का हमला तेज हो गया है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार से मांग की है कि वो असम राइफल्स वाले अपने बयान पर फोर्स से माफी मांगे। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने बताया कि उनकी पार्टी ने सीएम को आरोप साबित करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार अपने आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। दरअसल 11 अप्रैल को सीएम ने एक जनसभा में बयान दिया था कि साल 2000 में हुए एडीसी चुनावों में असम राइफल्स ने उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर राजनीतिक आदिवासी संगठनों की चुनाव जीतने में मदद की थी। सीएम के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने कहा है कि वो इस बयान की निंदा करते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार अपना बयान वापस ले। मांग पूरी न होने पर उन्होंने सीपीआईएम के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए असम राइफल्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस ने सरकार के आरोपों को लेकर एक पत्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजा है। साथ ही शिलोंग में असम राइफल्स के डीजी और 21 सेक्टर के डीआईजी को भी एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जो अर्धसैनिक बल की अखंडता और पवित्रता पर सवाल खड़ा करता है। এবং আমরা রাজ্যের মানুষ দেশবাসী আসাম রাইফেলসকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, কাউন্টার টেররিজম, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এইসব হিসাবেই আমরা আসাম রাইফেলসকে আমরা চিন্তা। এই আসাম রাইফেলসের যে এরকম নগ্ন চেহারা এটা আমাদের কারোর জানা ছিল না। আমরা নতুন করে আসাম রাইফেলসকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর চিনতে শুরু করলাম। ওনার এই বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ যেমন রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও রয়েছে। আমরা এই সমস্ত প্রমাণাদি তথ্যাদি রাজ্যের এবং দেশের মানুষের সামনে আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে উত্থাপন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আসাম রাইফেলস আমাদের রাজ্যে সক্রিয়। তারা যদি এরকম গভীর চক্রান্ত করে থাকে, তারা যদি এই ওনার স্টেটমেন্ট পরিপ্রেক্ষিতে উগ্রবাদদের সাথে বসে চক্রান্ত করার অভিযোগ, এ তো সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। তো আমরা শুধু মুখ্যমন্ত্রী কেন, তথ্যাদি পেলে আমরা দেশবাসী, রাজ্যবাসী, আমরা সকলে মিলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তার আগে এই অভিযোগের সপক্ষে উনার কাছে কি কি প্রমাণাদি, কি কি তথ্যাদি রয়েছে সেগুলো আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে উত্থাপন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। উনাকে, সরকারকে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি এটা যেন রাজ্য সরকার এটাকে জনসমক্ষে উত্থাপন করে। আজকে পোস্ট করে দিয়েছি কুরিয়ারে সকাল সকাল। দেশের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং डीजी असम राइफल्स शिलोंग में। अरुणाचल प्रदेश स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मंगलवार को अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने राज्य में वित्तीय संकट पर चर्चा का आयोजन किया। राज्य में वित्तीय संकट पर चर्चा करते हुए अरुणाचल सिविल सोसाइटी के चेयरमैन पाते तायम ने वित्तीय कुप्रबंधन और राज्य में हो रहे आर्थिक संकट पर चिंता जाहिर की। साथ ही चर्चा में मौजूद पैनलिस्ट से उचित समाधान निकालने का आग्रह भी किया।
वहीं एडवोकेट जिमसी तासार ने अनुच्छेद 360 और 365 के तहत राज्य में वित्तीय आपात स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही चर्चा में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राज्य में हो रहे वित्तीय संकट पर अपनी राय सबके समक्ष रखी। वेस्ट इंफाल जिला स्थित परेड ग्राउंड में पेंशन लेने आई एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। केशामथोंग विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक ने महिला की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग ने ग्राउंड में सही इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। 75 वर्षीय इरिंगबाम पुनिर्माशी देवी वेस्ट इंफाल जिला के केशामथोंग विधानसभा क्षेत्र में रहती थी। बताया जा रहा है कि महिला अपनी पोती के साथ परेड ग्राउंड में पेंशन लेने गई थी, जहां कांग्रेस विधायक आर.के. आनंद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत दी जाने वाली पेंशन वितरित कर रहे थे। तभी अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं इस खबर के साथ ही महिला की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। महिला की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे केशामथोंग विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक लेइशोम लिबोमचा ने मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लिबोमचा ने आरोप लगाया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेंशन वितरण कार्यक्रम के दौरान सिर्फ 2 ही बेंच लगाए गए थे, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां उचित टेंट की व्यवस्था भी की गई थी। दूसरी तरफ एनसीपी विधायक ने पेंशन कार्यक्रम के दौरान पेंशनों को कोई भी सुविधा दिए जाने से साफ इनकार किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार उनके निर्वाचन क्षेत्र के पेंशनरों के साथ भेदभाव करती है। लिबोमचा ने मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह पर अपने मंत्री को बचाने का आरोप भी लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक सह संसदीय सचिव मार्कियो ताडो ने कुछ लोगों पर नाव तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्कियो ताडो ने रिगम तातुक, रूमिक चापो और ताडांग ताजाम नामक 3 लोगों पर 7 अप्रैल की रात कुमे नदी के किनारे एक नाव तोड़ने का आरोप लगाया है। ताजो का कहना है कि नाव का निर्माण भारी मशीनरी के परिवहन के लिए किया गया था और इसके क्षतिग्रस्त होने से भारी नुकसान हुआ है। ताजो ने बताया कि कुरुंग जिले के संग्राम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। ताजो ने ये भी बताया कि दूर दराज क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी के विकास के लिए नौका का उपयोग किया जाना था, इसलिए इलाके के लोगों में नाव में तोड़फोड़ को लेकर गुस्सा है। Such type of accused persons who are doing repeatedly, doing with a free plan, destroying the public property, threatening in the warning the executive engineers, A's, J's, for their gainful, for their personal best interest, may be politicalized or may not politicalized, and hindrance the development, obstacle the developments of the area, where, which is very much important, should be punished, should be arrested immediately by the district administration, by the district police. Exemplary punishment should be given to them also. A section of societies, NGOs, student organizations, unions, panchayat leaders, general publics are strongly condemn such act of the anti-social activity and anti-development activities which they have done. We are really condemned to them, and this act of anti-social activity and development activity, and where road construction has been now under the stop, and which people are trying for immediate connectivity. ईटानगर के विवेक विहार स्थित थेरावदा बौद्ध मंदिर में सांकेन फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 13 से 15 अप्रैल तक चले फेस्टिवल में मुख्यमंत्री नाबम तुकी समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की थी। सांकेन फेस्टिवल बौद्ध समुदाय का पारंपरिक नववर्ष महोत्सव है, जिसे थेरावदा बौद्ध मंदिर में बहुत ही परंपरागत तौर तरीकों से मनाया जाता है। फेस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी, कृषि मंत्री चाउना मेन, पीएचडी मंत्री ताकम पारियो समेत बौद्ध समुदाय के 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने भगवान बुद्ध की तस्वीरों को स्नान करवाया और बौद्ध समुदाय के लोगों को सांकेन फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी। तुकी ने कहा कि बौद्ध धर्म शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सांकेन फेस्टिवल हर समुदाय द्वारा मनाया जाना चाहिए, जिससे प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की स्थापना की जा सके। इस दौरान सीएम ने मंदिर के बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए फंड देने का आश्वासन भी दिया। रिटर्निंग वॉल और मल्टीपर्पज हॉल चाहिए, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ नाच गान करेगा, कुछ प्रोग्राम करेगा, कुछ प्रेयर हॉल बनाएगा,
अनेक एक्टिविटीज़ के लिए यह एक हॉल चाहिए, लेकिन यह रिटर्निंग वॉल के साथ बनने का प्रोग्राम रखा है। टेक्निकली फिजिबल होगा कि नहीं अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए, अच्छा इंजीनियर को लगा दो, अच्छा इंजीनियर को उसको डिजाइन करने दो, नहीं तो नीचे से उसको उतार के बनेगा, बाद में कभी कभी आर्टक्वेक वगैरह में दुर्घटना भी हो सकता है ना, तो उसको ध्यान में रखो। बनाने में तो आसान है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसको ध्यान में रखिए। अच्छा आर्किटेक्ट वो इंजीनियर उसको ड्राइंग डिजाइन के साथ बनाने दीजिए, और मेरा तरफ से एस्टीमेट बनाने दीजिए, हम मदद करेगा, हम जरूर मदद। देश भर के साथ साथ त्रिपुरा में भी बुधवार को बंगाली समुदाय का नववर्ष मनाया गया। बंगाली समुदाय ने बेहद ही पारंपरिक, सांस्कृतिक और हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया। बांग्ला नववर्ष के उत्सव पर त्रिपुरा में सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहते हैं। बांग्ला नववर्ष हिंदू पंचांग के मेष संक्रांति के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो पंजाब की बैसाखी का दूसरा दिन है। बंगाली समाज के लोग नववर्ष की शुरुआत गणेश, लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की पूजा से करते हैं। इस दिन ही बंगाली व्यवसाय के लोग व्यवसाय का पहला दिन मानते हैं और खाता बही नया आरंभ करते हुए गत वर्ष की वार्षिक लेखाबंदी की जाती है। बंगाली समाज के लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और खाने में मछली का प्रयोग करते हैं। लोग एक दूसरे को इस अवसर की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही खुशियां भी मनाते हैं। नया साल मनाने मंदिर आए व्यापारी बिजॉय बानिक ने बताया कि वो मंदिर में अपने साथ अकाउंट बुक भी लाए हैं, ताकि नए साल की शुरुआत में भगवान का आशीर्वाद ले सके। इनके साथ ही मंदिर आए सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे थे। अच्छा, आज का बचरे प्रथम दिन एवं सारा बचर जाते सुंदरभावे चलताम पारी ठाकुर काछे प्रार्थना एवं हालखाता निये आछि सारा बचर जाते बिजनेस आमादेर सामনের দিকে এগিয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে আমরা আছি। আজকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, আজকে আমরা মন্দিরে এসে সবাই মিলে ধরেন ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যে বছরটা যেন ভালো যায়, সবার যেন মঙ্গল হয় এবং স্বামী সন্তান নিয়ে যাতে সারা বছর ভালোভাবে থাকতে পারি, এটাই। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।